3/4 of the side would be machinery account. Okay, 3/4 of the side would be machinery account. Same side you have to draw it. 3/4 area pay you have to make machine, and 1/4 pay depreciation. 3/4 area pay you make machinery account, and 1/4 pay depreciation. Same format, debit credit. Ledger format, date particular JF amount, date particular JF amount. Okay, two accounts. As I told you, majority of the sums will be asked these two accounts, asset account and depreciation account. And we also did this in the last lecture that we also learned this in the last lecture that asset and depreciation account would not be made on monthly basis. It will be made on yearly basis. Yearly basis. तरीका वही है, खाली monthly बैलेंस नहीं करना है, yearly बैलेंस करना है, ठीक है? Yearly बैलेंस करना है. Okay. Now, when you start the problem of depreciation, you always make some boundaries at the year end. In the question itself, एक साल का डेटा जहां पे खत्म होता है ना, उधर एक पेंसिल से लाइन मार देना. देखो मैं रीड करता हूं क्या दिया है. Question 2. New trading company Mumbai purchased machinery for 90,000 on 1st April 2008. अभी एकदम लास्ट लाइन पे पढ़ोगे तो दिया हुआ है वी नीड टू मेक मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 years, 8, 9, 9, 10 and 10, 11. Can you see that? So 1st April 08 falls in which year? 1st April 08 falls in the year 0809. Correct? 0809 में पड़ता है. फिर on 1st October 08 additional machinery of 60,000 was purchased. Additional machinery was purchased for 60,000 on 1st October 08. I think 1st October 08 also falls in the year 89. तो पहला दोनों मशीन आपने कौन से साल में खरीदा हुआ है? तो 89 में खरीदा हुआ है. Got that? Then on 1st October 2010, the company sold the machine purchased on 1st October 08 for 40,000. तो 1st October 2010 में सेल हुआ है. So that year, that date falls in which year? 1st October 2010. Is it falling in the year 8, 9, 9, 10 or 10, 11? 10, 11. 10, 11. So basically फर्स्ट ईयर में हमने दो मशीन परचेज किया है. सेकेंड ईयर में कुछ भी नहीं किया है. नो परचेज नो सेल, पूरा साल खाली पड़ा हुआ है. एंड थर्ड ईयर में वी सोल्ड वन. थर्ड ईयर में वी सोल्ड वन मशीन. ओके, तो ऐसे समराइज कर लेना और एक लाइन ड्रॉ कर लेना. कहाँ लाइन ड्रॉ करोगे? वो 60,000 रुपीज के बाद. 60,000 रुपीज के बाद एक क्वेश्चन में वर्टिकल पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर लो. बाउंड्री लाइन है वो तुम्हारा, ईयर का बाउंड्री है. इधर ईयर का ट्रांजैक्शन उसी साल में होना चाहिए ना, तो आप प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट ईयर में नहीं कर सकते हैं ट्रांजैक्शन. तो वो ईयर का बाउंड्री लाइन रखोगे तो क्वेश्चन में इजी पड़ेगा सॉल्व करते वक्त. ये जैसे ईयर खत्म हुआ वो दिन पे डेप्री चार्ज करो, फिर नेक्स्ट ईयर पे जाओ, फिर नेक्स्ट ईयर के एंट्रीज रिकॉर्ड करो वैसे. सो क्वेश्चन का समरी क्लियर है? वंस अगेन आई विल रिपीट. इन द ईयर 1 वी बॉट
2 machines. In the year 1, we bought 2 machines. In the year 2, there is nothing, no purchase, no sale, only depreciation. And in the year 3, we have sold 1 machine. Comfortable? Year 1 में 2 खरीदा, year 2 खाली है, year 3 में 1 बेचा. Okay? अब मेरे को बताओ कौन सा मेथड कर रहे हो? Which method are we doing? FIM और RBM? FIM. FIM कर रहे हैं हम लोग, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कर रहे हैं. What is the peculiarity of fixed installment method? Amount of depreciation changes every year or it remains same every year? Remains same every year. Remains same every year. Amount of depreciation remains same. It is equally divided over the life of the asset. Is that right? So year ending लिख दो और method लिख दो. कल आपको बताया था last lecture working note number 1. What is the year ending? Look at the problem and try to identify the year end. Is it 31st December or 31st March? 31st March. 31st March. 31st March it is. Can you see that? Year ending 31st March clear cut दे दिया आपको. अगर कुछ नहीं भी दिया है तो भी we assume it is 31st March. And method is 10%. 10% straight line method. 10% straight line बोलो, FIM बोलो, OCM बोलो, original cost method, they are all one and the same. Okay. Let's start then. Very first entry. New trading company Mumbai purchased a machinery of 90,000 on 1st April 2008. Isha, what is the entry for buying a machine for cash? Machinery to cash. Machinery to cash on which date? 1st April 08. See, यहाँ पे ledger कर रहे हो, ledger. So direct posting करना है. Machinery में to cash, cash में buy machine. तो machinery account में आएगा to cash bank account. Machinery account में to cash bank account 90,000. Machinery में to cash bank 90,000. That was on 1st April 08. Then on 1st October 08, additional machine was purchased for 60,000. Gargi, what is the entry for buying additional machine for 60,000? Machinery to cash. Machinery to cash. Also tell me, is it in the same year or in the next year? 1st October 08. Sir, same year. Same year. Same year है 8-9 में ही हो रहा है तो 1st October 08. Again you pass the entry machinery to cash bank. Machinery to cash bank, that will be 60,000. Now, is there any other transaction happening in the current year? 8-9 में check कर लो. कुछ और खरीदा बेचा है आपने 8-9 में? Current year में check. Nothing, right? Nothing. No more purchase, no more sale. So you go for depreciation. Okay. On what date you will charge depreciation in year 1? Think about it. On what date you will charge depreciation? 31st March 2009. 31st March 09. 31st March 2009. Is that clear? What is the journal entry for depreciation, Jia Shah? What is the journal entry for charging depreciation? Depreciation to asset. Depreciation to asset. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका entry depreciation account debit to machinery account. So depreciation में to machinery, machinery में buy depreciation, depre में to machine, machine में buy depre. अब how many machines are we having to depreciate? One machine or two machine? Two machines. So make a working note number 2. This is depreciation for the year 8-9. Name them as M1 and M2. M1 is machine 1, M2 is machine 2. What was the cost of machine 1? So I think 90,000. Method आपको बताया था ना, वो PNR वाला फॉर्मूला जैसे ही करना है. लोन पे इंटरेस्ट करते हो वैसे यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो. सो 90,000 पे 10%. अभी ध्यान दो, देखो यहाँ पे फर्स्ट मशीन कब खरीदा था आपने? विच डेट डिड यू बाय द फर्स्ट मशीन? 1st April 08. So how many months have we used the first machine? How many months have we used the first machine? 12 months. Think.
12 12 months. months. April, May, June, July, August, September. ऐसे करने का. April, May, June, July, August, September, October, November, December, Jan, Feb, March. April to March. Full 12 महीना वापरा है. Yes or no? Full 12 months we have used. So how many months का depreciation you will charge? How many months का depreciation you will charge? Full 12 months. Is this clear? First machine April 1st को खरीदा था. Year ends on 31st March. So full 12 months. So net amount is 9,000. 9,000 से depreciate करोगे आप इसको. What about the second machine? What about the second machine? Second machine is worth how much? 60,000. 60,000. 60,000. Yes. उस पे 10% for how many months? 6 months. Why 6 months? Did you get it? All of you? Why 6 months? देखो date देखो कब खरीदा है दूसरा machine. When have we bought the second machine? We have bought it We on bought it in August, First- so the amount first will October. be. अरे October, so it is 6 months total. हाँ कैसे 6 months हुआ? October. 10 is October. So October, November, December, Jan, Feb, March. या फिर you can do 10, 11, 12, 1, 2, 3. 10, 11, 12, 1, 2, 3. Yeah, October, November, December, Jan, Feb, March. Is that clear? So second machine has been used for 6 months. So into 6 by 12. तो कितना आता है ये? I think 3,000 rupees आएगा. This is 3,000. Now 9 plus 3, what is my total depreciation? 12,000. Total depreciation for the current year is 12,000. All of you got that? एंट्री क्या है अपना? एंट्री हमने ऑलरेडी पास कर दिया है. डेप्री टू मशीन. अब अमाउंट फिलअप कर दो इधर. 12,000 and 12,000. I think my year 1 is finished. Year 1 is over. Year 1 खत्म होने के बाद क्या करते हो? तो बैलेंस डेबिट माइनस क्रेडिट. दिस इज 1,50,000. 1,50,000 minus 12,000 is 1,38,000 by balance CD on 31st March 09, and it will become on 1409 to balance BD 1,38,000. Similarly depreciation account मैंने आपको बताया था. Will you carry it forward as balance? Will you carry forward depreciation as balance to the next year? No. That is an expense, and all expense and all incomes, where do they go at the end of the year? They get Opposite transferred account. to profit and loss account. So by profit and loss account, entry होगा profit and loss to depreciation. ये चला गया P&L account में and बंद हो गया. Sir, First year is over. बोलो. can I split depreciation entry 2 times, like one for the machinery purchased on 2008 and the one? And one on 110. You don't do that because this depreciation is charged on the last date, on the same date. Same date you have passed 2 entries, depre to machine, depre to machine. So you always club na in journal. That's why we clubbed. Same date हो रहा है तो you club. Different dates, then you write 2 separate entries. It is on the same day, you club it. Alright. करें आगे. Second year. Now second year. Tell me, read the question. Second year is 9-10, 2009-2010. Did we do anything in the second year? Any purchase, any sale, anything? क्या आपको दिखाई दे रहा है वहां पे? Read करो. Check. No purchase, no sale, right? No purchase, no sale. So what do we do in the second year then? We calculate depreciation. Directly we calculate depreciation. So we move to the last date. That is 31st March 2010. Again the same entry. Depre to machine. इसमें कोई purchase कोई sale नहीं है. तो depre में 2 machine
मशीन में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 31st March 2010. अब still we are having how many machines in the second year? Use your common sense. Second year में भी कितने मशीन पड़े हुए हैं हमारे पास? 2 machines. We are still having 2 machines in the second year, right? Second year में भी 2 machines पड़ा हुआ है अपने पास, M1 and M2. Let's name them as M1 and M2. Correct? अब M1 and M2 दो machines पड़ा हुआ है, दोनों को depreciate करना है, yes or no? Common sense use करो. अब in the second year, अभी first year को भूल जाओ. In the second year, we have used this 90,000 का machine for how many months? Tell me. Both are used for a full year, like 12 months. Both are used for full year. Common sense. समझ आया? First machine भी April to March. Second machine भी April to March. Second year, not the first year. Second year 9-10 में दोनों मशीन ऊपर से आ रहे हैं, तो दोनों मशीन फुल ईयर यूज किए हैं. बात समझ आई? तो दोनों मशीन पे how many months का depreciation you will charge? So 12 months. Are you understanding this? Anyone any doubt in this part? Why both the machines 12 months? Did you get it? पहले साल में first machine was 12 months and the second machine was 6 months. Why? Because पहला वाला 1st April को खरीदा था. 1st April से 31st March 12 महीना यूज किया. दूसरा वाला 1st October को खरीदा था. 1st October से 31st March 6 महीना यूज किया. In the first year they were for 12 months and 6 months. But in the second year, that is in the year 9-10, both the machines were there from the beginning till the end of the year. From April till March, we have used both the machine for full 12 months. So full 12 months का depreciation will come on first machine, full 12 months का depreciation will come on second machine. Yes or no? समझा कि नहीं? सबको समझा? Any doubt in this? चलो लिख दो. 90,000 पे 10% for 12 months. I think it comes to 9,000. दूसरा वाला है 60,000. उस पे भी 10% for 12 months. That comes to 6,000. So what is my total value of depreciation? That is 15,000. 15,000 is the total amount of depre. Record करो उसको और आपका second year भी खत्म. Record किया 15,000 and आपका second year खत्म. Second year के end पे क्या करना है? वापस balance करना है आपको. Debit minus credit. Machine is a long term asset. वो कहीं ट्रांसफर नहीं होगा, वो कैरी फॉरवर्ड होगा एज बाय बैलेंस CD carried down on 31st March 2010 और वो बन जाएगा 1/4/10 को वेरी नेक्स्ट डे टू बैलेंस BD 1,23,000. डेप्रिशिएटेड वैल्यू इज 1,23,000. डेप्रिशिएट होके बन गया है 1,23,000. And what about depreciation account? Depreciation account लास्ट डे पे कहीं कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, ट्रांसफर हो जाता है P&L अकाउंट में. ये जितना डिफरेंस है 15,000 का, ये चला जाएगा आपके P&L अकाउंट के अंदर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. One of the expenses of this year, current year, 15,000. That's your second year. That's your second year. Okay. Comfortable till this part? First year depreciation. और दो परचेज किया फिर डेप्री किया. सेकेंड ईयर में कुछ परचेज नहीं, कुछ सेल नहीं, सिंपली डेप्रीसिएशन. अब थर्ड ईयर, यहां तक आ जाओ सब लोग. अब थर्ड ईयर पे जाते हैं. थर्ड ईयर में पढ़ो क्या दिया हुआ है. थर्ड ईयर में दिया हुआ है देखो क्या दिया है. 60,000 के बाद यहाँ पे आपने बाउंड्री किया है पेंसिल से. बाउंड्री के बाद देखो, ऑन 1st October 2010 the company sold the machine purchased on 1st October 08 for 40,000.
तो on 1st October 2010, I think that falls in the current year, 1st October 2010, yes or no? 10-11 के बीच में आता है वो. On 1st October 2010, the company sold a machine purchased on 1st October 08 for 40,000. तो देखो कौन सा वाला मशीन सेल किया है, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? M2. M2. M2 सेल किया हमने, सेकंड वाला सेल किया है, ठीक है. अब सेकंड वाला कितने का खरीदा था? 60,000. 40 में बेच दिया, सो 20 का लॉस. इज दैट राइट? No. Book value पे we always calculate profit and loss. एग्जैक्टली. देखो 60,000 का तुमने परचेज किया हुआ था. मैनी स्टूडेंट डू दिस कॉमन मिस्टेक. 60 का खरीदा, 40 में बेचा, 20 का लॉस. नहीं भाई, डेप्री कहाँ गया? 60,000 का आपने खरीदा था 1st October 08 को, लेकिन बेच रहे हो 1st October 2010 को, 2 साल बाद. उस पर डेप्रिसिएशन जमा हो जाएगा ना आपका, वो माइनस करो, फिर बुक वैल्यू मिलेगी, उसको आप कंपेयर करो 40,000 के साथ, फिर आपको मिलेगा प्रॉफिट और लॉस. तो उसके लिए व्हेनेवर यू सेल, भी यहां से ये नया पार्ट चालू हो रहा है सेल का. ओके, लास्ट लेक्चर भी हमने एक सेल किया था, बट वो सिंगल मशीन सम था. सिंगल मशीन में प्रॉब्लम नहीं आता है. व्हेन यू हैव मल्टीपल मशीन का प्रॉब्लम, व्हेन एंड यू सेल, सो यू मेक दिस वर्किंग नोट. एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है. बाकी वर्किंग नोट नहीं भी बनाया तो चलेगा, लेकिन ये वर्किंग नोट चाहिए ही. ये किसका वर्किंग नोट है? प्रॉफिट और लॉस का. जब भी आप कोई एसेट बेचोगे, देयर इज बाउंड टू बी सम प्रॉफिट और लॉस. देयर इज बाउंड टू बी सम प्रॉफिट और लॉस. सो यू मेक दिस वर्किंग नोट टू शो द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस. ओके, ये वर्किंग नोट कैसे शुरू करनी है, इसका सेट फॉर्मेट है, एकदम सेम फॉर्मेट हर एक प्रॉब्लम में होगा इसका. ये वर्किंग नोट शुरू कहां से होगा? ये शुरू होगा ओरिजिनल कॉस्ट से. ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन 1st October 08. कितने का था ओरिजिनल कॉस्ट? जो मशीन बेचा उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितने का था? तो 60,000 का. कैन यू सी दैट? और कब परचेज किया था? 1st October 08 को. करेक्ट? 1st October 08, द सेकेंड मशीन है जो बेचा है, उसका ही बनाना है ये नोट. फिर क्या करना है? अब आपका दिमाग बहुत आराम से स्ट्रेट चलना चाहिए. You keep on depreciating that machine. Go on depreciating it. Go on depreciating it. Till which date you will keep on depreciating? 1st October 1st October. 2010. Till the date of sale, 1st October 2010. Okay? और डेप्री कैसे चार्ज करना है? ईयर वाइज चार्ज करना है. ईयर वाइज मतलब पहला साल था 8-9, so less depreciation for the year 0809. कितना महीना यूज किया था? 6 महीना. कितना होगा डेप्रिसिएशन? तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, ऊपर है यहाँ पे, आपने ऑलरेडी किया हुआ है कैलकुलेट. कैन यू सी दैट? फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 3,000. तो 60,000 पे फर्स्ट ईयर का 3,000 सब्ट्रैक्ट किया तो यू गेट WDV. WDV का मतलब होता है बुक वैल्यू. बुक वैल्यू एज ऑन 6 महीने बाद, मतलब 1409. 6 महीने बाद 1409. 1st October 08 से 6 महीना आगे बढ़े. पहले साल में 6 महीना, फर्स्ट ईयर में 6 महीना यूज किया, आगे बढ़े तो 1409 को मिला 57,000 का वैल्यू. अब डिड वी सेल इट इन द ईयर 9-10? सेकेंड ईयर में बेचा था उसको? नहीं ना. तो सेकेंड ईयर भी पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज करो. लेस डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 9-10. अभी 9-10 में तो 12 मंथ्स यूज किया हमने, ऊपर चेक कर लिया, ये रहा ऊपर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है वो 9-10 का, 8-9 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्डेड है. पहला साल 3,000, सेकेंड ईयर 6,000. तो 57 माइनस 6 कितना आता है? 51. दिस इज व्हाट बुक वैल्यू. WDV रिटन डाउन वैल्यू. WDV का फुल फॉर्म होता है रिटन डाउन वैल्यू. रिटन डाउन वैल्यू एज ऑन 1st April 2010. 1st April 2010 is the third year now, starting of the third year. यहां तक समझ में आया क्या किया मैंने?
I simply depreciated that machine for 2 years. First year में 6 महीना, second year में 12 महीना. Now in the current year, third year, tell me, think and tell me, how many months have you used the machine in the current year, the third 6 months. So 6 depreciation months. will be 3000. 6 months. Why 6 months you got it? 1st April को तीसरा साल चालू हुआ, फिर बेचा कभी 1st October को, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. April, May, June, July, August, September. You have used it for 6 months. So you charge depreciation for again 6 months. तो एक और डेप्री चार्ज करना है यहाँ पे, less depreciation for the year 10-11 for 6 months. 6 months. 6 months. कितना आएगा 6 months का? वापस कैलकुलेट करना है कि आंसर पता है आपको? फुल ईयर का अगर 6000 है तो 6 months का 3000. कितना होगा? 3000. So simple. वापस करना है तो वापस करके कैलकुलेट करो 60,000 पे 10% फॉर 6 months. वही आएगा आंसर 3000. सॉरी. Is this clear? 60,000 पे 10% for 6 months. That is 3,000. So you get WDV as on 1/10/10, 1/10/10. That is 48,000. 1st October 2010. That comes to 48,000. Is that clear? 1st October 2010. That's 48. बस ये आपको मिल गया बुक वैल्यू. इसका लॉजिक क्या है? 60,000 का एसेट था, घिस के यूज हो के आज के डेट में कितना हो गया? सेल के डेट में हो गया 48 का. एंड 48 का एसेट आपने कितने में सेल किया है? लेस सेल. कितने में बेचा आपने उसको? 40,000 में बेच दिया. तो क्या हुआ? 48 का 40 में बेचा तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है कि लॉस? Loss of 8,000. लॉस होता है ना. लॉस ऑन सेल. लॉस ऑन सेल ऑफ 8,000. 8,000 का लॉस. 8,000 का लॉस. एब्सोल्युटली राइट. तो मैंने इस वर्किंग नोट में क्या किया आपको समझ आया? What did I do in this working note? I started with original cost. I kept on depreciating the asset till the date of sale, and then simply compared it with the sale value. I got my profit, I got my loss, whatever it is, profit or loss. Now, how many things you are supposed to record at the time of sale? Okay. सबसे पहला चीज क्या रिकॉर्ड करना है आपको? सोचो, सेल के वक्त पहला चीज क्या रिकॉर्ड करना है? दिमाग लगाओ. ओरिजिनल कॉस्ट. ओरिजिनल कॉस्ट तो हो गया. Depreciation. सबसे पहला डेप्रिसिएशन फॉर द करेंट. Depreciation record. हाँ, पहले डेप्री करना पड़ेगा. ओरिजिनल कॉस्ट रिकॉर्ड करना है कि हो चुका है? हो चुका है. ओरिजिनल कॉस्ट हो चुका है, जब परचेज किया था तब हो चुका है. अच्छा, ये डेप्री रिकॉर्ड करना है 3,000, 6,000, ये वाले पहले 2 साल के डेप्री. वो भी हो गया. नो, वो भी हो चुके हैं. पहले 2 साल में आपने रिकॉर्ड कर दिया है. तो अभी करंट ईयर का है ना, हम लोग थर्ड ईयर पे हैं. देखो यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज द थर्ड ईयर गोइंग ऑन. तो थर्ड ईयर में सेल के वक्त क्या क्या रिकॉर्ड करोगे? तो सबसे पहला तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करोगे. कितने महीनों का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करोगे? हाउ मेनी मंथ्स का डेप्रिसिएशन विल यू 6 रिकॉर्ड months. ऑन द सोल्ड मशीन? 6 months. सोल्ड मशीन पे अभी सेल पे कॉन्सेंट्रेट करो, दूसरा वाला मशीन को बाद में देखते हैं. सोल्ड मशीन का पहला डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो. 6 महीने का ये रहा, यहाँ पर है, इसको रिकॉर्ड करो. एंट्री क्या होगी उसकी? व्हाट विल बी द एंट्री फॉर दैट? डेप्री की एंट्री क्या होती है? डेप्री टू मशीन. सेम एंट्री. तो डेप्रिसिएशन में रिकॉर्ड करना है टू मशीन, और मशीन में रिकॉर्ड करना है बाय डेप्री. डेप्रिसिएशन में टू मशीन, मशीन में बाय डेप्री. कौन से डेट पे करोगे? सेल कब हो रहा है? सेल 1st October. हाँ, तो ये भी जाएगा 1st 1st October. अक्टूबर को. याद है लास्ट सम किया था हमने प्रीवियस लेक्चर का? सेल वाला डेट पे जो भी एंट्री हो रहा है उसका रिकॉर्ड सेल वाले डेट पे ही होगा. 110 के 110 को ही बेच दिया, तो डेप्री भी 110 को ही करना है. नॉर्मली डेप्रिसिएशन इज डन ऑन योर एंड, बट व्हेनेवर यू सेल एन एसेट इन बिटवीन देयर इज एन एक्सेप्शन. ओके, जिस डेट पे सेल किया उस डेट पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर देने का. डेप्री टू मशीन कितना आएगा? डेप्री टू मशीन करंट ईयर का
3000. 3000 6 months जो यूज किया ना उसका डेप्रिसिएशन 3000. गॉट दैट? बस एक बार डेप्री हो गया, उसके बाद सेल का एंट्री. अच्छा, यहाँ पे आपने देखो लॉस में बेचा है. व्हाट इज द एंट्री फॉर सेलिंग अ मशीन फॉर लॉस? Cash account debit 40,000. Loss on sale 8,000. To machinery 48,000. बराबर है. कैश अकाउंट डेबिट 40, लॉस ऑन सेल 8, टू मशीन 48. इसको स्प्लिट करो, तोड़ दो, तो क्या एंट्री होगा? कैश टू मशीन 40, लॉस टू मशीन 8. ये तो आता है ना सबको, कैश लॉस टू मशीन. डेप्री तो कर लिया, अभी मशीन की वैल्यू कितनी थी? 48. 48 का 40 में बेचा तो 8000 का लॉस. ये रहा लॉस लिखा हुआ है यहाँ पे. एंट्री क्या होगा? कैश लॉस टू मशीन. सो कैश टू मशीन, लॉस टू मशीन. हाउ विल यू पोस्ट कैश टू मशीन? कैश में टू मशीन, मशीन में बाय कैश 40,000. तो गो टू मशीन अकाउंट एंड रिकॉर्ड बाय कैश ऑफ बैंक अकाउंट 40,000. Buy cash of bank account 40,000 on 1/10/10. 1/10/10 date of sale. And एक और चीज रिकॉर्ड करनी है, दैट इज लॉस. लॉस का भी एंट्री क्या है? लॉस टू मशीन. लॉस टू मशीन, तो लॉस में टू मशीन, मशीन में बाय लॉस. लॉस में टू मशीन, मशीन में बाय लॉस. सो बाय लॉस ऑन मशीन, by loss on machine, that should be 8,000. Got that? लॉस अकाउंट नहीं दिखा रहे हो, कैश अकाउंट नहीं दिखा रहे हो, तो उसको जाने दो. लॉस में टू मशीन, मशीन में बाय लॉस. कैश में टू मशीन, मशीन में बाय कैश. बस ये हो गया आपका सेल का काम खत्म. So what can we conclude? Whenever you sell any machine, there is a shortcut way to remember this. Whenever you sell any machine, you record three things. Whenever you sell any machine, you record थ्री थिंग्स. कोई भी एसेट बेचते वक्त तीन चीजें रिकॉर्ड करनी है. कौन सी तीन चीजें रिकॉर्ड करनी है? नंबर 1 डेप्रिसिएशन फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर. नंबर 2 सेल का एंट्री बाय कैश बैंक. एंड नंबर 3 प्रॉफिट और लॉस. लॉस है तो बाय लॉस, प्रॉफिट है तो टू प्रॉफिट. इज दिस क्लियर? सो थ्री थिंग्स यू हमेशा रिकॉर्ड इट. व्हाट आर द थ्री थिंग्स? पहला डेप्रिसिएशन फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर. नंबर 2 कैश बैंक सेल का एंट्री. एंड नंबर 3 प्रॉफिट और लॉस का एंट्री. समझ में आ गई बात? ये तीन चीजें हर बार होने ही वाली है सेल पे, वो कर दिया आपने. अच्छा, अब क्या बचा? अब क्या बैलेंस कर दूं? साल खत्म हो गया. नहीं, दूसरे मशीन का 31 मार्च 2011 पे भी डेप्रिसिएशन तो करना पड़ेगा. करना पड़ेगा. दो मशीन है अपने पास, यस और नो? एक मशीन सेल कर दिया, उसका काम तमाम. नाउ दैट इज गॉन. बट दूसरा मशीन तो पड़ा हुआ है अभी भी. विच मशीन वी आर स्टिल हैविंग? M1 90,000 वाला. उस पे क्या करना है आपको? डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. कौन से डेट पे करना है? लास्ट डेट वी हैव टू डेप्रिशिएट इट. वो तो वैसे ही यूज हो रहा है ना फुल 12 months. हाँ, 31 मार्च 31/3/11 को करना पड़ेगा उसको. तो उसका मैं एक और वर्किंग नोट बता रहा हूँ लास्ट में, या फिर यहीं से कॉपी कर सकते हो आप. देखो कितना यूज किया है फर्स्ट वाला M1 को, कितना यूज किया फुल आपने? ईयर. फुल ईयर. फुल ईयर यही रहेगा ना 9,000. वापस नहीं भी बनाओगे नोट तो चलेगा. बनाओ नोट के समझ में आया? इवन इन एग्जाम यू कैन स्किप. ये ऊपर वाला नोट नहीं भी बनाया तो चलेगा. ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल वाला. तो पहला वाला M1 हैज बीन यूज्ड फॉर फुल ईयर April to March. So 9,000 will be depreciation. Entry will be passed again on 31st March 11. What is the entry? Depri में टू मशीन, मशीन में बाय डेप्री. डेप्री में टू मशीन, मशीन में बाय डेप्री. कितना आएगा? तो 9,000 रुपीज. 9,000 रुपीज. इज दैट क्लियर? बस अब क्या करना है? बैलेंस करना है. काम तमाम खत्म. on 31st March 11 by balance carried down. This is 1,23,000. 1,23,000 minus the credit. कितना आ रहा है ये? I think
63,000 आ रहा है मेरे हिसाब से, तो चेक कर लो जरा, डेबिट माइनस क्रेडिट 63 आ रहा है क्या? टू बैलेंस BD on 1/4/11 और डेप्रीसिएशन कितना है अभी टोटल? 12,000. Will you carry it forward? So definitely no, because it's an expense. It will be transferred to P&L. अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस में 2 बार ट्रांसफर करना है कि 1 बार? On which date will you transfer the depreciation to profit or loss account? Year end. Year end, 31st March 11. Year end, एक ही बार. इधर 2 एंट्री होने का मतलब ये नहीं कि इधर भी 2 बार करो बाय P&L. P&L तो एक ही बार बनता है ईयर एंड पे. तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जस्ट वंस इन योर ईयर एंड, 12,000 rupees total amount. Is that clear? 12,000 rupees total amount. ये 63 आ रहा है मशीन का बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस 63,000 you are getting? हेलो? Yes. अच्छा, इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो आप, राइट किया है कि रॉन्ग. एक शॉर्टकट वे टू क्रॉस चेक दिस बैलेंस. हाउ डू यू डू दैट? 63,000 जो मिला है ना, ये आंसर, इसका एक शॉर्टकट तरीका है, बड़ा ही सिंपल है. सोचो, क्रॉस वेरीफाई. सी, आपके पास कितने मशीन थे शुरू में? 2 थे, M1 एंड M2. उसमें से M2 तो सेल हो चुका है, तो फॉरगेट दैट. व्हाट आर यू लेफ्ट विथ नाउ? M1 कितने का था? What was the value of M1? 90,000. So what is this 63,000? 63,000 है क्या? It is Book value of the M1. book value of M1, depreciated value of M1. M2 तो निकल चुका है, अकाउंट में आया और सेल हो गया, निकल चुका है. तो you are left with only, sorry, M2 तो निकल चुका है, you are left with only M1, machine 1. तो ये 63 is nothing but the book value of machine 1. तो machine 1 90,000 का था, उसको कितना साल we have used? How many years we have used? 3 years. फर्स्ट ईयर में 9 का डेप्री, सेकेंड ईयर में 9 का डेप्री, थर्ड ईयर में 9 का डेप्री. सो टोटल डेप्री इज हाउ मच? 27. 90 माइनस 27 आ गया ना 63. समझा? What is 63,000? Depreciated value of machine 1. Why machine 1? Because machine 2 is no more in our books. It is gone. It is sold. So we are left with only machine 1. मशीन 1 को कितना यूज किया ऊपर से चेक करो. फर्स्ट ईयर 12 महीना, सेकेंड ईयर 12 महीना, थर्ड ईयर 12 महीना. 9 9 9 90 minus 27 got the answer 63. Simple. Is this clear? अगर 2 मशीन होते तो दोनों का डेप्रिशिएटेड वैल्यू, 3 मशीन होते तो तीनों का डेप्रिशिएटेड वैल्यू. जितने भी मशीन है उसका डेप्रिशिएटेड वैल्यू को ऐड करो तो आपको बैलेंस मिल जाएगा 63,000. That's a way to cross check whether you have done it right or wrong. Got it? Hello. समझा? क्रॉस चेकिंग. ओके, क्रॉस चेकिंग अगर टाइम है तो करने का लास्ट में, अदरवाइज तो ठीक है, कैलकुलेशन बराबर से करो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी. नेक्स्ट सम का ड्रॉ करो. गो टू द नेक्स्ट सम, सम नंबर 3, थर्ड सम. ड्रॉ इट, कम ऑन ऑल ऑफ यू. थर्ड सम ड्रॉ करो. थर्ड सम, सानिका एंटरप्राइजेस. क्विकली, सेम कॉलम्स. क्वेश्चन 3. In the books of Sanika Enterprises. The books of Sanika Enterprises. Now, इस सम में अपने पास फर्नीचर है और डेप्रिसिएशन. We have furniture and depreciation. So furniture account
एंड 1/4 में नीचे बना देना डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्री तो बहुत चिंदी होता है, उसमें 2 ही एंट्री आएगा, टू मशीन और बाय पीएनएल, टू मशीन और बाय पीएनएल, उसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं रिकॉर्ड करने जैसा। सो फर्नीचर अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट, दिस इज डेबिट, दिस इज क्रेडिट। डेट, particulars, JF amount, date, particulars, JF amount. Okay. Credit, debit. Let's start. करें? Smith Shah. Yes, sir. Are you writing? चलो. Furniture account and depreciation account. Let's begin. क्या दिया है पढ़ो. Sanika Enterprises, Pune, purchased a furniture for 40,000 on 1st July 05. 1st July 05. अभी लास्ट लाइन पे पढ़ लो, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या करना है. सेकेंड लास्ट लाइन पे देख लो. What have they given? Show furniture account and depreciation account for the years 5, 6, 6, 7 and 7, 8. Can you see that? 5, 6, 6, 7 and 7, 8. 3 years का बनाने का 5, 6, 6, 7, 7, 8. तो पहला लाइन पढ़ो वापस. They purchased a furniture of 40,000 on 1st July 05. 1st July 05 falls in which year? 5, 6, 6, 7 or 7, 8? कौन से साल में आता है? 5, 6 में आता है. Additional furniture was purchased on 1st January 2007 for 20,000. 1st January 2007 falls in which year? 5, 6, 6, 7 or 7, 8? 7, 8. No. 6, 7. 6, 7. We are doing April to March. April to March. Okay. So April 06 से March 07 होता है ना. So April 06 से March 07 के बीच में आ गया ना, Jan 07. Correct. So first furniture is coming in the year 5, 6. Second furniture is coming in the year 6, 7. And उसके बाद क्या दिया है? They charge depreciation at 15% on original cost. See the percentage. Is it 10% or 15%? What is the percentage of depreciation? 15%. Okay. तो हर साल अभी कितना लोगे? 10% लोगे कि 15% चार्ज करोगे? बोलो. 15%. 15% you will charge on original cost every year. Are you getting that? 15% charge. 15%. 10% दिया तो 10%. 15 दिया तो 15. Then on 1st October 2007, they sold the furniture purchased on 1st July 05 for 32,000, and on the same date, a new furniture was purchased for 10,000. Show furniture account and depreciation account for the year 5, 6, 6, 7, 7, 8. तो ये कब हुआ है? 1st October 07 को सेल हुआ है. 1st October 07 falls in which year? 5, 6, 6, 7 or 7, 8? 7, 8. 7, 8. 1st October 07 falls in the year 7, 8. October 07 से March 08. Yes or no? So October 07 से March 08 में आता है 1st October 07. और वही डेट पे एक और परचेज किया. तो अगर हम लोग समराइज करते हैं पूरा प्रॉब्लम, सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड? समराइज करते हैं तो क्या पता चलता है? ईयर 1 में एक परचेज किया है हमने, ईयर 2 में एक और परचेज किया है हमने, और ईयर 3 में एक सेल किया और एक परचेज किया. यस और नो? 3 साल का करना है ना अपने को. 5, 6, 6, 7, 7, 8. तो 5, 6 में हमने खरीदा, 6, 7 में खरीदा,
और 7-8 में एक बेचा और एक खरीदा। ये समझ में आया आपको? ये समरी दिमाग में फिट कर लेना, फिर प्रॉब्लम बहुत इजी होएगा रिकॉर्डिंग करने के लिए। अब भूल नहीं जाओगे कौन से साल में खरीदा था, कौन से साल में बेचा था, ये समराइजेशन बना लो डेट्स देख के। क्लियर है अभी? एनी डाउट इन दिस पार्ट, डेट्स वगैरह? चलो बढ़े आगे। अप्रैल टू मार्च का साल है, सबसे Not पहला, very simple. सॉरी बोलो विदुषी। Quite simple. क्वाइट सिंपल, हाँ चलो। फर्स्ट वन, Sanika Enterprises purchased a furniture for 40,000 on 1st July 05. 1st July 05. Vidushi, tell me the entry. Purchased a furniture. What is Sanika it? Huh? In furniture, it will. In cash, it will be 2 furniture, and in furniture, over here, it will be 2 furniture, and in cash, it will be buy furniture. B. Be 2 cash only. 2 cash only. Entry क्या है तुम्हारा? Furniture to cash. You told To me cash four. slash You buy told me furniture. 4 wrong answers. You know that? No, it will be yeah. Yeah. So now listen. Your entry is furniture to cash. Your entry is furniture to cash, right? तो furniture में to cash और cash में buy furniture. तो Buy. फर्नीचर में टू कैश बैंक, फर्नीचर में टू कैश बैंक कितना आएगा? 40,000। फर्नीचर में टू कैश बैंक 40,000, दैट इज ऑन 1st जुलाई। जुलाई इज द 7th मंथ। हाँ, ये अगर मंथ नहीं मालूम है ना, ये है ना सबके पास, ये मालूम है ना बचपन में क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, डेज, मंथ सब मालूम पड़ेगा यहाँ से। सो to cash bank it is 40,000। then उसके बाद तो नेक्स्ट ईयर है एडिशनल फर्नीचर ऑफ 20,000 was purchased on 1st January 07. Should I do it in this year? No, that is in the next year. तो ये साल खत्म। अब क्या करूं? बैलेंस कर दूं? Should I do balance? Yes, विदुषी? But there will be a depreciation हाँ, there will charge be on this year. depreciation, डेप्री चार्ज करना पड़ेगा। ओके, डेप्री चार्ज करना पड़ेगा। एंट्री क्या होगी डेप्रीसिएशन चार्ज करने की? डेप्री टू फर्नीचर। सो डेप्री में टू फर्नीचर और फर्नीचर में बाय डेप्रीसिएशन। डेप्री में टू फर्नीचर, फर्नीचर में बाय डेप्री। व्हाट विल बी द लास्ट डेट ऑफ दिस ईयर? कम ऑन, व्हाट विल बी द लास्ट 31st March 2006. 31st March 06। 31st March 06। एक ही मशीन है 40,000 का, तो उस पर डेप्री चार्ज कर रहा हूं मैं यहाँ पे। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 5-6 फर्स्ट ईयर। कितना महीने का डेप्रीसिएशन आना 9 चाहिए? months. 40,000 पे 15% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? बोलो। 9 months. 9 months. 1 year, 9 months, 6 months, 3 months. 9 months. Why 9 months? All of you got that? Simple. 1st जुलाई को खरीदा, 31st months. मार्च को ईयर एंडिंग है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना होता है? 9 months, करेक्ट? So 9 months का depreciation I will charge obviously because I have used it for 9। पहले साल में ये लफड़ा होने वाला है फर्स्ट ईयर में, बाद में तो 12 नो लफड़ा। फिर सीधा जिस साल पे बेचा उधर देखने का, अदरवाइज 12। फर्स्ट ईयर में you need to be alert, फर्स्ट ईयर में, because you can buy the machine on any damn date, okay? It need not be the first date of the year, it can come on any date, so you need to be alert। 40,000 का 15% कितना आया? 4,500. 4,500। 4,500 तो कर लो, रिकॉर्ड करो। डेप्री में टू फर्नीचर 4,500 और फर्नीचर में बाय डेप्री 4,500। फिर बैलेंस करो अभी इसको, क्या आएगा? 40,000
minus 4,500 is 35,500 by balance CD 31st March 06 and on 1406 ये हो जाएगा 2 balance BD 35,500 और इधर 31st March 06 को चला जाएगा ये बेचारा PNL में टू बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट PNL टू डेप्रिसिएशन 4,500 इसकी स्टोरी खत्म ओके 4,500 चला गया PNL में year 1 is finished year 1 finished go to year 2 what happened in year 2 during summarization we saw that what happened in year 2 think Purchased one more asset. purchased one more on which date can you tell me on which date first January, 1st January 2007 again same entry will pass furniture to cash on 1st January 2007 समझ में आ रहा है 1st January 2007 1107 to cash bank furniture to cash bank एक और खरीदा कितने का खरीदा 20,000 का और कुछ हो रहा है in the current year any more purchase any more sale no so we go to which date last date what is the last date of this year 31st March 0 what 31st March 0 08 ah 08 only, no? 7. 07 અહીંયા જ લોચું વારે okay 31st March 07 see first year was 5-6 April 5 से March 6 second year is what 6-7 so April 6 से March 7 31st March 08 लिख दोगे तो 2 साल हो गया 2 साल गलत है ईयर में अलर्ट रहना ईयर में डेप्री में 2 ही आइटम में ध्यान देना है डेट्स और कैलकुलेशन एंट्री तो बहुत चिंदी है डेट्स एंड कैलकुलेशन बी वेरी परफेक्ट आर यू गेटिंग इट 6-7 so April 06 से लेके 31st March 07 so on 31st March 07 what do we charge depreciation 31st March 07 again same entry डेप्री में टू फर्नीचर में बाय डेप्री में टू फर्नीचर में बाय डेप्री वर्किंग नोट नंबर 2 depreciation for the year 6-7 depreciation for the year 6-7 use your brains tell me how many furniture do we have in the second year come on how many furniture do we And need we in have the full second? furniture, but the life of furniture is very less in the second one. Depreciation is very less life तो बहुत है depreciation is less for the second furniture पहला वाला फर्नीचर कितना महीना यूज किया है फर्स्ट फर्नीचर जो 35,500 जो 40,000 वाला है 40,000 वाला वो एक है साल वापरा। Full year. वो एक साल which method are we doing FIM में किस पे चार्ज करना है डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल Original cost what is the original cost 40,000 पे 15% for how many months पहला वाला फर्नीचर फर्स्ट वाला फर्नीचर कितना लूं 12 months first furniture will be used for 12 months yes or no अप्रैल से मार्च तक शुरू से एंड तक साथ में पड़ा हुआ है तो 12 months तो कितना आता है ये आई थिंक 6,000 this is 6,000 what about the second furniture जो 20,000 वाला है उस पे 15% for how many months 3 months. why 3 months because you bought it on 1st of Jan so Jan Feb March only 3 months we have used so into 3 by 12 तो कितना आता है तो I think 750 आ रहा है calculate 20,000 पे 15% for 3 months 15 into 50 that is 750 so 6750
My total depreciation for second year is 6750. Is that clear? Sorry. So I don't get the first furniture wala part. How come it's 6,000? How come it is 6000? See, first furniture 40,000 का था, वो लास्ट ईयर खरीदा था. अभी ये साल कितना यूज हुआ है? इन द सेकेंड ईयर कितना यूज हुआ है? इट इज देयर फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, so obviously it has been used for 12 months. But first year mein we took it for 9 months because we bought it on 1st July and we used it till 31st March, 9 months. But second year में तो start to end अपने पास ही पड़ा है ना. आपने लास्ट 2020 में अक्टूबर में लैपटॉप लिया था, तो अक्टूबर से 2021 का मार्च, पहले साल 6 महीना वापरा. बट 2021, 2022, 2023 तो 12 महीना वापरते जाओगे, राइट? तो इसको भी वैसे 12 मंथ्स यू आर यूजिंग, 12 मंथ का डेप्री. बट जो दूसरा वाला है उसको आपने 1 Jan को लिया, उस पे अगेन 3 मंथ्स आएगा. ये साल 3 मंथ्स ही यूज किया, टोटल किया तो 6750. तो 6750 रिकॉर्ड करो और फिर बैलेंस करो. वही स्टोरी रिपीट होती है. 35 + 20 55,500, 55,500 minus 6750 is 48,750. I think 48,750 आएगा by balance CD on 31st March 07. ये बन जाएगा 1407 को to balance DD 48,750 and depreciation को बेचारे को उठा के डाल दो P&L में. तो by profit and loss account 6750 ये हो गया खत्म. 6750. That's your year 2. That's your year 2. All right. Third year. What is happening in the year 3? Check. What is happening in the year 3? On 1st October 2007, third year में, that is 7-8 में, they sold the furniture bought on 1st July 05. So which furniture are they selling? The first one or the second one? First one. First one. कितने में बेचा? For 32,000. So should you take 40 minus 32, 8,000 as your loss? Would that be right? No, it will be on the return down value. Written on down the value. further depreciation. Depreciation करने के बाद, yes. वो करने का अपने को. और फिर एक और परचेज किया, वो बाद में करते हैं. चलो पहले सेल. Whenever you sell any machine, there is bound to be some profit or loss. Yes or no? Whenever you sell any machine, there is bound to be some profit or Loss. loss. So we need to calculate that. For that, we need to make a working note. So let's make a working note to calculate profit or loss on sale. Working note number 3, profit or loss on sale. सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है, ध्यान से देखो. वापस बना रहा हूं लास्ट सम वाला जो बनाया था. कहां से शुरू होगा ये वर्किंग नोट? From where do you start this? Original cost of the Original cost. Very good. Original cost as on. कब खरीदा था पहला वाला फर्नीचर हमने? 1st July 05. 1st July 05 को खरीदा था 40,000 का. 1st July 05 को खरीदा था 40,000 का. Now what is our goal? What is our target? Our target is to keep on depreciating it. Till which date? Till which date you will keep on depreciating it? 1st October 2007. Till the date of sale, 1st October 07. Correct? So first year का डेप्री 9 months का. वापस मत करना कैलकुलेट, ऊपर है आंसर 4,500. फर्स्ट ईयर 9 months वापरा, 4,500 से डेप्रिशिएट किया. यू गॉट WDV बुक वैल्यू एज ऑन 1406 आफ्टर 9 months.
1705 से 9 months, तो 1406 होता है ना, फर्स्ट ईयर का 9 महीने बाद. You got the value as 35,500. Then less depreciation for second year 6,700 में तो फुल 12 months यूज किया. वो भी आपको कैलकुलेट नहीं करना है, यहाँ पे किया हुआ है आपने. ये दोनों आंसर आपको ऊपर से मिल जाएंगे, 4,500 और 6,000. So you get WDV as on 1407 after 12 months. That is what 29,500. Is that right? 29,500. Did you sell it on 1407? Yes, sir. What? Yes. No. It won't be 29,500. It will be up to July 7. What July 7? No, you did It not sell. will be up to July. October. You sold it on 1st October 07. See the date. You have sold it on 1st October 07. So in the current year, you have used it for how many months? In the current year, you have used it for how many months? Tell me. 6 months. 6 more months. So less Be 3,000. depreciation for 7, 8, 6 months. कितना आएगा 6 months का? 3,000. 3,000. और ऐसे ही कर सकते हो ओरली, कुछ लिखने की जरूरत या करना है कैलकुलेट तो चेक कर लो. 40,000 पे 15% फॉर 6 months. 40,000 पे 15% फॉर 6 months. Why 6 months समझा? 1 अप्रैल था, वहां से बेचा 1 अक्टूबर, तो अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर. अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर. इन द करंट ईयर डेट ऑफ सेल, ईयर ऑफ सेल में 6 महीना वापरा है. आर यू गेटिंग इट? तो 6 months का डेप्रिसिएशन यू चार्ज ऑन दैट. 6 months का डेप्रिसिएशन यू चार्ज. समझ में आ रहा है? फुल ईयर का अगर 6,000 है तो 6 months का कितना होगा? तो 3,000. सब्ट्रैक्ट करो तो क्या मिलता है आपको? WDV या बुक वैल्यू एज ऑन 1/10/07 और 6 महीना. 1/10/07 को आ गए हम लोग. 26,500 मिलेगा आपको वैल्यू. विल वी गो एनी फर्दर? No. आगे और भागते मत जाओ, स्टेशन आ गया है. हेलो, नहीं तो फिर आगे करते जाते हैं. डेप्री. ये डेट ऑफ सेल पे आके रुक जाना. नाउ खत्म. कंपेयर इट विद सेल वैल्यू. 26,500 का था और कितने में बेचा आपने? पढ़ो. सोल्ड इट फॉर 32,000, राइट? तो क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट ऑन सेल हो रहा है. कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 5,500 रुपीज. प्रॉफिट इज 5,500 रुपीज. इज दैट क्लियर? 5,500 का प्रॉफिट. अब अभी हमने डिस्कस किया, हाउ मेनी थिंग्स डू यू रिकॉर्ड एट द टाइम ऑफ सेल? हाउ मेनी थिंग्स डू यू रिकॉर्ड एट द टाइम ऑफ सेल? टेल मी. How many things do you record at the time of sale? 3. Cash, Cash, bank, and profit or loss. Absolutely right. 3 things: depreciation, cash bank, and profit or loss. Okay. सबसे पहला करंट ईयर का डेप्री. पूरा मत करना. देखो ये 4,500 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है ऊपर वाला लास्ट ईयर. 6,000 भी रिकॉर्डेड है सेकेंड ईयर. अपने को कौन सा रिकॉर्ड करना है अभी? 3,000 वाला रिकॉर्ड कर. 3,000 वाला रिकॉर्ड करना है. एंट्री क्या होगा उसका? एंट्री क्या होगा? डेप्री टू फर्नीचर. तो डेप्री में टू फर्नीचर में बाय डेप्री. करंट ईयर जो यूज किया उसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया. कितना आएगा? तो 3,000. डेट क्या आएगी? डेट 1/10/07 डेट ऑफ सेल. 1/10/07 को 3,000 रिकॉर्ड किया. ओके. फिर आते हैं सेल के एंट्री पे. टेल मी व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर सेलिंग एन एसेट एट अ प्रॉफिट? अभी हमने लॉस देखा था लास्ट सम में, अभी प्रॉफिट हो रहा है. तो एंट्री क्या होती है? कैश टू फर्नीचर टू प्रॉफिट ऑन फर्नीचर. यस और नो? याद है ये? एसेट प्रॉफिट में बेचा तो कैश टू फर्नीचर टू प्रॉफिट. कैश कितना मिला आपको? 32,000.
फर्नीचर कितने का था 26,500, प्रॉफिट कितना हुआ 5,500। इसको कैसे स्प्लिट करना है, स्प्लिट एंट्री बताओ इसकी मुझे। Cash to furniture 32,000 and then furniture to profit हाँ, 500. 5,500 याद है, ये लेजर करते वक्त भी बताया था। स्टूडेंट्स मेक दिस मिस्टेक, क्या गड़बड़ कर देते हैं, कैश टू फर्नीचर कैश टू प्रॉफिट कर देते हैं, वो गलत होगा। Why we can't do that? Because profit or loss, is it a cash income expense or a non-cash income or expense? Non-cash income or expense. Non-cash income, loss और profit दोनों non-cash income expense है। देखो ऊपर जब लॉस हुआ था तो क्या किया था हमने, कैश टू मशीन लॉस टू मशीन किया था, ठीक है, कैश टू मशीन है लॉस टू मशीन, तो लॉस टू मशीन था, लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, तो मशीन कम हो रहा है, कैश कम नहीं हो रहा है, मशीन कम हो रहा है, लॉस टू मशीन। वैसे यहाँ पर मशीन अपना फर्नीचर बढ़ रहा है, ओके, कैश नहीं बढ़ेगा, फर्नीचर बढ़ेगा, तो इसका स्प्लिट एंट्री ऐसे होता है, फर्नीचर टू प्रॉफिट, फर्नीचर टू प्रॉफिट that will be 5,500 and cash to furniture that will be 32,000, cash to furniture that will be 32,000. Is that clear? So furniture to profit and cash to furniture 32,000. Keep that in mind. So post it. Number 1 you chart depreciation, number 2 ये वाली एंट्री कैश टू फर्नीचर, बोलो कैश टू फर्नीचर 32,000, हाउ विल यू पोस्ट इट, कैश में टू फर्नीचर, फर्नीचर में क्या आएगा, By बाय cash बाय कैश, बाय on कैश the बैंक, credit. ऑन द क्रेडिट साइड बाय कैश बैंक कितना आएगा 32,000 सेल वैल्यू, 32,000 सेल वैल्यू। सो पहला डेप्रिसिएशन, दूसरा सेल, बाय कैश बैंक, सेल वैल्यू, थर्ड प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट है, तो शुड इट बी बाय लॉस ऑन सेल या टू प्रॉफिट ऑन सेल, व्हाट शुड बी द पोस्ट, Profit on sale. टू प्रॉफिट ऑन सेल। एंट्री क्या था, फर्नीचर टू प्रॉफिट, दिख रहा है यहाँ पे, फर्नीचर टू प्रॉफिट, मतलब फर्नीचर बढ़ा, प्रॉफिट इज क्रेडिट द गेन, फर्नीचर बढ़ा गेन हो गया, और फिर बढ़ा हुआ फर्नीचर 32 में बेच दिया, तो कैश टू फर्नीचर, फर्नीचर टू प्रॉफिट, कैश टू फर्नीचर, फर्नीचर टू प्रॉफिट, तो फर्नीचर में टू प्रॉफिट लिख दो, टू profit on furniture, to profit on furniture on 11007, कितना आएगा टू प्रॉफिट ऑन फर्नीचर ऑन 11007, 5,500. 5,500। बात समझ आई? अगेन वी रिकॉर्डेड 3 थिंग्स, व्हाट आर द 3 थिंग्स, नंबर 1 डेप्री, नंबर 2 सेल, सेल का एंट्री क्या है बाय कैश बैंक, एंड नंबर 3 प्रॉफिट और लॉस, लॉस है तो बाय लॉस, प्रॉफिट है तो टू प्रॉफिट, लॉस है तो बाय लॉस, प्रॉफिट है तो टू प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? हो गए तीनों चीजें रिकॉर्ड। स्प्लिट एंट्री समझा, प्रॉफिट का स्प्लिट एंट्री, ऑलवेज रिमेंबर प्रॉफिट और लॉस इज नॉट अ कैश एक्सपेंस और इनकम, नॉन कैश है, तो लॉस हुआ है तो लॉस टू फर्नीचर, प्रॉफिट हुआ है तो फर्नीचर टू प्रॉफिट, ओके। बस अभी क्या करना है, एक और खरीदा है हमने, एक और खरीदा है सेम डे पे, सेल का पार्ट हो गया, अभी परचेस करो, सेम डे पे एक और खरीदा है 11007, एंट्री विल बी सेम, फर्नीचर टू कैश बैंक, फर्नीचर टू कैश बैंक, कितने का परचेस किया, देखो वहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000. 10,000 का एक और खरीदा है। अब क्या करूं, साल तो खत्म हो गया, परचेस सेल हो गया, कर दूं बैलेंस, नहीं, depreciation टू फर्नीचर, on which furnitures now, One purchased on 10 2 and 3. and the 2 and 3, basically F2 and F3, F1 is sold, F2 and F3 are left, okay। कौन से वाले दो बाकी है, ये वाला बाकी है और ये वाला बाकी है, 20 वाला बाकी है और 10 वाला बाकी है, इसको डेप्रिशिएट करना है, कौन से डेट पे करोगे, 31 मार्च 08 31 मार्च 08 करो डेप्रिसिएशन। आई एम मेकिंग द लास्ट वर्किंग नोट number 4, depreciation for the year 7-8, depreciation for the year 7-8. How many furniture we have now, F2 and F3,
F1 तो गया बेचारा, सोल्ड आउट। F2 एंड F3 बचे हुए हैं, है ना। F2 कितने का था, पढ़ो ऊपर, कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट कर रहे हो, FIM कर रहे हो तो कॉस्ट पे चार्ज करना है, राइट। We are doing FIM method. FIM में always you charge it on original cost. What was the original cost? Tell me. Furniture 2 का original cost 20,000. 20,000. ये कितना परसेंट? 15%. 50. Pay how many months? सोचो। करंट ईयर में Is कितना the यूज? whole year. Second Whole year. furniture पूरा साल वापस. सेकेंड फर्नीचर पूरा साल यूज किया, आयशा को समझ में आ रहा है? बढ़िया। तो ये हो गया 3,000। दूसरा तीसरा फर्नीचर, थर्ड फर्नीचर, विराली, थर्ड फर्नीचर कब परचेज किया हमने? थर्ड फर्नीचर व्हेन हैव वी परचेज्ड? 1st October 1st October 07। 2007. कितने का है? 10,000। 10,000 पे 15%, इस पे भी ले लूं 12 महीना? 6 months. Why 6 months? October to March. हाँ, 1st October को लिया है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। फर्स्ट ईयर जब भी एसेट एक्वायर करते हो, फर्स्ट ईयर भी अलर्ट, ऐसा घोड़े के जैसा कान खड़ा रहना चाहिए। फर्स्ट ईयर, ओके, टेक द सिग्नल ऑफ फर्स्ट ईयर। When you buy any asset in the first year, be double cautious for the number of months. Second year onward एक बार asset पुराना हो गया तो लफड़ा नहीं, 12 months। फर्स्ट ईयर पे भी अलर्ट, 6 महीना ही करो, ओके। कितना आएगा ये? आई थिंक 750 रुपीज। What's your total depri? 3750. Should I do it on furniture 1 also? Yes, sir. Sold only. Sold. That is gone. That is away. It is no more in the books, right? So 3750 is my total depreciation. कर लो record. By depreciation. By depreciation 3750 और depreciation में आएगा to furniture 3750 on which date? 31st March 08। खत्म। बैलेंस खादू पीदू राज की दो 58 63 64 250 64 250 minus the credit, so you get by balance carried down 31st March 08। कितना आता है बैलेंस? चेक 35 38 750 24 250 25 38 750 था ना balance और total. 64 250 is the total. 38 750 is the total on the credit credit. side का total. हाँ 38 750। बैलेंस आई थिंक 25 500 आ रहा है, चेक करो। Get to balance BD on 1408 और ये वाला हो जाएगा आपका बाय बैलेंस, क्या सॉरी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना बचा डेप्री? 6750 अच्छा, कौन से डेट पे जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? कौन से डेट पे ट्रांसफर करना है? 31st मार्च 0 बोलो 31st March 08 31st March 08 you transfer it to P&L। 31st March 08 transfer it to profit and loss account, लास्ट डेट एक साथ। ये हुआ आपका प्रॉब्लम समाप्त। ओके, देख लो ध्यान से। हाउ विल यू वेरीफाई दैट 25,500? ये आपको शॉर्टकट बताया था अभी ये 25,500 को कैसे वेरीफाई करना है, बता सकते हो? व्हाट इज दिस 25? जो भी फर्नीचर वो बुक्स में है वो दोनों को ऐड करने का और उनका डिप्रिशिएशन माइनस करने का। हाँ, तो कितने फर्नीचर है? 30,000 दो फर्नीचर है तो 30,000। हाँ, तो अलग अलग करो, अलग अलग। F2 F3 F2 कितने का है? 20 का है। F3 कितने का है? 10 का है। माइनस 20,000 माइनस 3750। Why 3750? उतना डेप्रिसिएशन हुआ है। कैसे 3750 हुआ? 750 और 3000। या वेरी गुड, परफेक्ट। पहले साल 750, दूसरे साल 3000, 3750, परफेक्ट। तो कितना होता है ये?
16250 और दूसरा वाला F3 लास्ट ईयर में जो खरीदा था 750 उस पे 750 खाली 750 का डेप्रिसिएशन, तो 9250। इन दोनों को ऐड करो, 16250 प्लस 5500 25500। आगे आपका बैलेंस वेरीफाई हो गया। कैसे करना है, लॉजिक समझा? इट इज ये 25500 इज नथिंग बट द बुक वैल्यू, द डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द अवेलेबल एसेट्स। जो सोल्ड एसेट है उसको इग्नोर करो, जो अवेलेबल है उसको डेप्रिशिएट है, टोटल डेप्रिसिएशन जो 2 साल 3 साल जो यूज किया, डेप्री माइनस करो, यू गेट द total book value 2500. Is that clear? Any doubts till this point? Tell me. All sorted? So that's it. We stop all for the day. आज के लिए इतना काफी है, ठीक है? And homework के लिए आ जाएगा, एक हाथ सम रहेगा from standard textbook. Solve it and send it by tomorrow. अगर मिला तो I'll send it. And we meet on Tuesday. We meet on Tuesday, where we'll be doing most difficult sums of FIM method. Most difficult sums of FIM method on Tuesday. Don't remain absent. Bye bye. See you. Take care. So in that furniture 2 like 2000 minus 375, so there should be 3000, na? नहीं. Because depreciation of second furniture is 3000. नहीं. See, second furniture है ना, यहाँ पे खरीदा था हमने 20,000 का, सेकेंड ईयर में खरीदा था। वो सेकेंड ईयर में कितने से डेप्रिशिएट हुआ है? 750 से, 3 मंथ्स का किया था। और फिर थर्ड ईयर में कितने से डेप्रिशिएट हुआ है? यहाँ पे 3000 से। सो टोटल डेप्री कितना हुआ? 750 और 3750, है ना? ऐसे ही थर्ड फर्नीचर पे खाली 750 का ही डेप्रिसिएशन, एक ही माइनस करो, टोटल डेप्री माइनस करो। वर्किंग नोट में मिल जाएगा, आपने किया हुआ है, ऐड करो। Bye, sir. Thank you. बाय, टेक केयर। Bye, sir. Thanks. Bye.